Gayatri ma'am, can you unmute yourself? Yeah, we can hear you now. Okay, ma'am. Hello everyone. We will wait. We should wait 5 minutes. Then after that we will start because some people will join also. So Yes, sir. then we will start. Yes, sir. Can you Yes, hear me, Shivani? Can you hear me? Yes, Dr. Lal, I Yes. can hear you. Thank you so much, and Thank you so much everyone and who are attending this session. And our today our moderator Dr. Shivani Gupta, and so he will we introduce to everyone and our eminent speaker and everyone. Most welcome to join. Thank you. Thank you, Dr. Lal. Dr. Shivani, you can start and
So Okay. okay, then people will join. At least Okay. we can discuss some our point and whatever we are thinking about this topic. So it will be good, and at least it will be the good discussion. Thank you. Okay. Thank you. Gayatri ma'am, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So good morning, good afternoon, and good evening, everybody present over here, because I believe that people are here from different time zones. So everybody is welcome. First of all, happy Women's Day to every women and of course men in the group. Let me have the opportunity to introduce our first speaker, Srimati Gayatri. She is a postgraduate in political science and engaged in research field for more than 10 years. She has many articles at her disposal in various national and international journals. India Quality of Progressive One and Education System in India are some of her more celebrated books. She is presently working as an associate editor, reviewer, and is a part of a various editorial committee member to various international journals. She has also delivered many talks as a keynote speaker in various national and international platforms. She has also participated in different conferences, and currently she is working as a columnist in Kannada newspaper also. Now the platform is yours, Gayatri ji, and I would like you to introduce yourself and also about the topic and whatever you want to say about your career experience by now. Thank you so much. Welcome. Good evening, ma'am. I am Gayatri Shankar from Karnataka, Bagalkot, Karnataka. So, thank you for introducing me. So, my once again, I am wishing all of you, wish you a very happy Women's Day. And 1 minute, ma'am. 1 minute, just. Okay, sure. 1 minute, ma'am. 1 minute, ma'am. So 1 minute, 1 Sure. minute. So, now I am now today I am giving that is to talk about the stress management. It is also useful for the students, professionals, housewives, or etc. Means how to we control stress management, even our workplace, our personal life, or etc. So first, that is also it is also helpful for our even for career growth opportunities also, and also for our personal life. So first one is thinking about stress management. It is just like an art. It is an art by which we can control our emotions, feelings, and the work pressure is there. So whatever we are having the feeling, that is anxiety, stress, short temper, so whatever is there, we can handle by having the stress management. Stress management, it is also just like we are having the that is course is there, and by this also we can handle, that is in our workplace. And next one is next one is we are having the comfortable dress. So by having the comfortable dress also, that is we can handle the stress management. For example, in function also, if you are wearing the dress which is also awkward and which is not good for our, that is also body, and not that is shape, so sometimes we are also feeling the stress, we cannot focus on any matter. So by this also, we can having the wearing comfortable dress, we can manage the stress management. So whenever we are also attending any function or any career growth, any meeting or etc., we should first take care of make sure that is the dress should be that is comfortable. And next one is, that is the most important, that is in this, don't involve in the gossip is there, because in the workplace we have to hear the both words of, that is appreciation as well as blames also there. And if you are concentrate every time what others saying, it is also waste of time and lead to stress, because they don't know about our struggles. And next one is, we should not sit on the table where also the people are having gossip, because when that is also we are also leaving the place, next that is they are having gossip about ourselves is there. So by that is not involving in the that is also gossip, we can concentrate on the stress management. And by this also, every time you are also engaging, hearing what the people are saying is that is gossip etc., we are wasting our time, we are wasting our energy,
and also it is also affecting that is on our focus is there. And next one is that is the make meditation. It is also one of the old methods of the that is also stress management is there. Meditation means that is making the yoga, and just like pranayama etc., it is also by closing the eyes and slowly that is also breathing, relaxing. We are having the feeling of relaxation, and by this we are having the coming to the attitude of the hope for the best. And whatever we are also facing confusion, tension or etc., just 5 minutes making the meditation, relaxation, and sometime we are also having the new idea that is for solving our problem. So by this also it is also affecting in the controlling the stress management. And next one is don't become the that is don't care matter, that is also don't care master is there. Sometimes we are also receiving the feedback, it may be good or bad is there. So whatever we are also telling the feedback, first we should also contradict and also hearing whether it is also good or bad. And that is also, and sometime if it is good is there, so automatically we have to receive. For example, we cannot see our back, so by this also whatever our also demerits. And next one is that is our bad habits or etc., whatever our body language, they are also giving our that is feedback about our dress, about our language, about our words or etc. And by this also, by taking the that is also feedback, we can easily admit our mistake, correct our mistake, and by this also we can have the that is many more growth opportunities. And next one is that is also time management. Time management, it is also very important is there, because in time management, by having the punctuality, we can balance the our workplace as well as our home is there. By making that is also advance. And next one is advance work done, we can avoid the last minute attention, and by this we can lead a disciplined life. Time management is also important, because every person is having the 24 hours time, not anybody is having the more or less. So whatever 24 hours time is there, if you are using the utilizing properly, we can avoid the stress management. For example, doing the works half, and next one is avoiding the laziness or etc., and by engaging the work or etc., we can make the time management. By time management, it is also comes to the form of the quality spending time with our family, just like that is also reading the books also, we can also time management by learn time management. In time management also, by having the some new techniques or etc., it is also helpful is there. And next one is that is also update ourselves, updating ourselves with the new techniques, strategies, then it is helps in the fast doing the work within the deadline. It helps in the stress management, because now also day by day science and technology, it is also growing, and if we are only having the knowledge of 1947, it is not good for us. So every time we should update with our thinking, with our thoughts. And next one is with the science, technology, whatever new strategies are etc., it is also helping is there. Every time we should update, otherwise it is just like a traffic is there, every bus or vehicle, it is also that is going, and we should only standing and seeing is there. So by updating also, we can control the stress management. And next one is that is we are having the result that is involved in the creativity. So by engaging in the creativity, it is also leads to divert the attention, and by this also we can search the new that is techniques. So every time creativity, new idea, new strategies, we can manage the that is our stress management. So that is also, it is also helpful for our stress management, by that is having the involving in the creativity. And next one is coming out from the comfort zone. It is also very important, because comfort zone, it is just like a slow poisonous is there. Once we are also that is adjusting with the comfort zone, we cannot that is also make any growth in the career. So by coming out from the that is also comfort zone, we can also becoming the, we can also that is search for new techniques, we can work hard, and by this we can make the stress management. And next one is don't become the
postpone master. Some people are having the habit of every time postponing the things or etc. So let us do on tomorrow, let us do on tomorrow or etc. It is also affecting our that is works. Every time you have to face that is blaming from the that is boss, blaming from the our colleagues, and just like inferiority complex, whatever daily we are seeing in the office politics. So by that is also doing the work and not postponing the work, we can also make the stress management, because some are having the habit of that is postpone master is there. So every time they are also postponing. We should avoid this, that is also bad things, and by this we can make the that is also that is we can have control, and by this we can have the that is stress management, and by this also we can have so many things is there. And next one is that is today we are also celebrating International Women's Day. So I think all women who are also engaging in any other field, so they should also easily they have that is also by born they have learned that is the how to manage the office and work balance is there. And next one is personal life. So every person who is also having the balancing these things, so it is also easy for them to achieve anything in our life, because International Women's Day, it is also giving a message to all the women, even it may be the CEO in the corporate office, even the people who are working in the agriculture or etc. All are also the women who are also the 49% population in India. They should know that is about stress management, especially it is also using for the that is woman, that is the women who are also engaging in the that is any type of work is there, it is also helping. And next one is everything we are also learned in the stress management. Most important is we should make the balance between the office work, and next one is we should not do any type of the chores, donkey work or etc. Because day by day we are also seeing in the social media in many platforms how that it is also an office, that is our people we are also exploited by the bosses or etc. Sometimes we are also having the less knowledge, and sometimes even though we are having the good knowledge, we are not getting any type of attention from them. We are also facing for in most of the time problem. The people who are also engaging in the research field, they should it is good for them, that is stress management, because they have to work, they have to do the research, they have to manage the personal life. So stress management, it is not only for any that is office going people, and it is also for the people who are engaging in the research field, because research field, it is also not so much easy, not only writing any that is also article or etc. It is also fully engaging day by day, searching, reading, and by this also collecting the matters, data, submission, whatever we are engaging in the research field, it is also mainly helping them. So stress management, it is not only for the people who are engaging in the research. For example, I am already engaged in research field that is more than 10 years is there. I am working as editor and next associate editor, reviewer for international journals. I am writing the articles, and I am also sometime you are also virtual mode. I am presenting my article. Sometime even also working as the that is also co-host even for African Research Group. And by this also most of the time I'm also that is day by day learning how to make the stress management, because in research it requires a lot of time. Research means it requires a lot of time, not only doing that is also submission of any article or etc. So day by day we have to engage, that is in research field, which is also sometimes it leads to stress is there. And if you are having the technique of stress management, we can easily engage in research field, we can make that is also career growth, and by this also it is also helping that is all the people. And in conclusion, we can say that we can say that stress management is really helpful to students, professionals to reach their goals, and helps to achieve success in their life. Even for the students who are also facing the exam in graduation, post-graduation, research or etc., the professionals who are also doing this government employees or corporate level field, whatever the professionals is there, they have to have the stress management. Only main thing is updating the work and not becoming the postpone master.
So 50% we can controlling stress management. And next one is whatever that is also we are using the words, we should control our words is there. We should control that is also learn to control our short temper, etc. We should control our that is also emotions whenever we are also living in the workplace is there, because workplace it is every time it is only workplace, it is not our home. So if we are having the so this much of knowledge in our that is mind, we can easily that is controlling the that is stress management. Most of the research people daily that is also I am seeing in internet, sometimes that is also they are facing so many problems in research field. All India Research Association it is also fighting for the people who are also working as researchers. It is also helping them how the researchers are they are facing the many problems that is in doing PhD. Even after PhD, sometimes they are also facing the problem that is making the career or etc. I know that is there. So because of this also, this stress management, it is also helping for the students and professionals and also researchers that is to reach their goals and to achieve the success that is in their life. So once again, I am wishing the all of you a very that is also many happy returns of the that is International Women's Day. Once again, we should also pride about that is becoming the woman. So thanking you for the All India Research Scholar Association that is providing me a good opportunity that is giving the talk on the that is stress management. Thanking you, sir. Thank you, Gayatri ji, for such an informative talk and also telling us about various methods and approaches where people can manage their stress while working at various domains of the places. Now, I would like to invite Manju ji to give us a talk about how to manage their stress. And I believe that she's an expert because she's a fitness and lifestyle coach and a nutrition expert. Good morning, good evening, Manju ji. And now the floor is yours. Please continue. Thank you so much, Manju ji. Can you hear us? Yes, ma'am. Manju ji, you're not audible. I think you need to unmute yourself. Manju ji, we can't hear you. Just भरत ये मंजू को थोड़ा को-होस्ट बना देना। हाँ हाँ ठीक है, बना रहे भाई। ओके। There is some restriction maybe, so just wait 1 minute, then Manju will be audible. Sorry for interruption, and just wait 1 minute, then we can continue. Yes. Hello, good evening everyone. This is Manju, wellness and lifestyle coach. मैं एक हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूँ और एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप हमारी सुपर डुपर को-होस्ट शिवानी गुप्ता मैम के लिए। सुपर को-होस्टिंग की इन्होंने। मैं बेसिकली मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान मेरा स्टेट है, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ और अभी मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हूँ और एज ए फिटनेस एज ए वेलनेस कोच मैं अभी लोगों की हेल्प कर रही हूँ। जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है कि जिसमें आज हम स्ट्रेस मैनेज के बारे में बात करेंगे, राइट? कि किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और क्या कॉजेज होते हैं कि जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो जब मैंने अभी वी रन ए क्लब जिसके थ्रू हम लोगों में हेल्थ अवेयरनेस जागरूक करते हैं, बट पहले जब मैं इस सिस्टम में इंक्लूड नहीं हुई थी तो मैं भी बहुत स्ट्रेस में रहती थी, बट इन दिस कम्युनिटी इसके बाद जो मेरी लाइफ एकदम चेंज हुई है, बहुत मतलब मैंने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया है। यहाँ से मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको कुछ समझाना चाहूंगी, आप और अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, राइट? तो आई कैन शेयर माई प्रेजेंटेशन। मैम शो हो रही है? आप अगर मुझे
Yes, yes, yes. Yes, yes, Visible. yeah, very nice. ओके, तो एक बार क्लैपिंग कर दीजिए हमारे हैप्पी टू हेल्प क्लब के लिए, Yeah, thank you so much. जिसका नाम Thank you. हैप्पी टू हेल्प क्लब है, कि हमें खुशी होती है कि हम लोगों की मदद करें, उनको खुशहाल, उनका जो जीवन है उसको खुशहाल बनाएं यहाँ से। तो हमारा जो अमेजिंग ये जो क्लब है, इसके थ्रू मैंने भी बहुत सारी चीजें यहाँ से अचीव किया है, और मैं अभी वही चीजें ट्रांसफर कर रही हूँ आगे पर्सन में, राइट। तो यहाँ से मैं भी एज ए हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच लोगों में जागरूकता फैला रही हूँ, और न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज लेने के बाद मैं न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एडवाइस करती हूँ कि आज जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है उसमें न्यूट्रिशन की कितनी कमी आ चुकी है। वी ऑल आर नो कि जैसे कि पहले जो न्यूट्रिशन था उसमें हमें जो भी फूड हम कंज्यूम करते थे उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में हमें मिलता था, बट अभी क्या हो रहा है कि अभी सभी चीजों में न्यूट्रिशन की जो वैल्यू थी वो बहुत डिक्रीज हो गई है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है या जो हमारा खाना पीना है, उन सभी में हमारे न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम आगे थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आई एम एन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। तो मैं बताना चाहूंगी कि न्यूट्रिशन की कितनी सारी वैल्यू हमारे अभी आज जो हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है, क्योंकि जो हमारी बिजी लाइफ स्टाइल है उसमें सिर्फ हमने सिर्फ इनकम की तरफ फोकस कर रखा है, ना कि हमारी हेल्थ के बारे में, राइट। तो ज्यादातर ये वाली चीजें यहाँ से होती है। आप यहाँ से मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे कि जब मैं इस कम्युनिटी में हमारे इस क्लब में ज्वाइन हुई थी, उससे पहले मेरा जो वेट था वो 48 केजी था, और मैं भी मतलब स्ट्रेस में रहती थी क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था मेरे पास, मेरी जो एनर्जी एकदम स्लो डाउन रहती थी, राइट। और क्या नाम है, मेरा स्ट्रेंथ, मेरी स्टेमिना कुछ भी नहीं था, ना मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, ना मेरी कोई पर्सनैलिटी थी। क्योंकि जब हम स्ट्रेस रहते हैं तो हम चाहे बाहर से कुछ भी हो, अंदर से हम मेंटली इतने मतलब वीक पड़ जाते हैं कि हम जो रियल में है वो वाला चीजें हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बट थैंक्स टू माय कम्युनिटी कि यहाँ पे मैं आई और यहाँ से मैंने अमेजिंग मेरी जो हिस्ट्री है, जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ से क्रिएट किया। यहाँ से मैंने मेरा वेट तो गेन किया ही है, मेरी मसल्स का मैंने यहाँ से वेट गेन किया है, और इसी के साथ साथ मैंने मेरी पर्सनैलिटी स्किल्स को काफी डेवलप किया है। आप इस पिक्चर में ये चीजें देख पाएंगे। और इसके साथ साथ ये मेरे हस्बैंड का वाव ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इनके बारे में। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट इन एम्स जोधपुर इन इंडिया, बट इनका बिजी लाइफ स्टाइल इस तरीके से था कि इनका वेट पुट ऑन होता गया, राइट। कि जब हम हमारी जो बिजी लाइफ स्टाइल है उसको प्रॉपर तरीके से, जो भी हमें डेली यूजेस में हमें कंज्यूम करना है, न्यूट्रिशन या जो भी चीजें फॉलो करनी चाहिए, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल बेकार हो जाएगी, हम ओबेसिटी की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसा ही चीजें मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी हुआ कि ये बस इनका फोकस किस में था, ओनली काम के अंदर, अपने वर्कलोड पे इनका फोकस रहता है, स्ट्रेस रहते ही, बट इनका वेट फिर पुट ऑन होता गया। फिर उसके बाद ये मेरे से इंस्पायर हुए कि मैंने मेरा यहाँ से वेट पुट ऑन किया है, तो इसके बाद इस कम्युनिटी में आए और यहाँ से अमेजिंगली इन्होंने पहले अपना 17 केजी डर्टी फैट, मैं आपको बता देना चाहूँ फैट भी दो तरीके का होता है हमारी बॉडी में, एक सबकॉन्शियस फैट होता है, एक विजरल फैट होता है। इस बारे में हम कभी बाद में एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। बट हमारी बॉडी में एक गुड फैट की क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिमम मात्रा में गुड फैट होना चाहिए, बट जो हमारा एक्सेस फैट होता है वो हमारा डर्टी फैट होता है, अनवांटेड हमारा फैट होता है। तो इन्होंने यहाँ से अपना अमेजिंगली 17 केजी अनवांटेड फैट रिड्यूस किया और उसके बाद अपनी 5 केजी मसल्स को यहाँ से गेन किया और अभी ये अपने आइडियल वेट को मेंटेन करने के साथ साथ इनकी जो पर्सनैलिटी और जो स्ट्रेंथ है वो उसमें काफी इंप्रूव किया है इन्होंने। और इसी के साथ साथ मैंने कुछ पर्सन्स का यहाँ से रिजल्ट क्रिएट किया है। ये मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, इनको भी मैं इस कम्युनिटी में लेके आई। इनका देखिए आप अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये रिजल्ट मैंने खुद इनका बनाया है यहाँ पे आके, राइट। पहले इनका वेट 89 था, फिर यहाँ पे 65 हो गया। 24 केजी डर्टी फैट, अनवांटेड फैट इन्होंने कम किया यहाँ से। और डिस्क्लेमर के साथ मैं बताना चाहूंगी कि इनको 14 ईयर से इनको बैक पेन था, L4 L5 में इनको गैप था, इनको थायराइड थी। बट डिस्क्लेमर के साथ इस कम्युनिटी में ज्वाइन होने के बाद ये एकदम परफेक्टली अभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, अपनी लाइफ मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। क्योंकि जो हमारी जो इंडस्ट्री है या जो हमें नॉलेज दी जाती है, दिस इज अ वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। मैं थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताती हूँ, फिर उसके बाद हम वी विल कंटिन्यू अवर जो टॉपिक है आज का हमारा।
तो यहाँ से भी इन्होंने अपना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है और इनसे इंस्पायर होके काफी लोगों की मैंने एज ए कोच अभी हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो इंडिया है या जो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड है हमारा, उसमें लोग परेशान बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे इनकम को लेकर हो, बहुत ऐसे तरीके हैं। तो मैंने यहाँ से इन्होंने इनका अमेजिंग यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया और हम डेली बाय डेली लोगों में हेल्थ अवेयरनेस फैलाते हैं। जैसे मैंने जयपुर में हेल्थ सेमिनार किया, लोगों में बहुत जागरूकता फैला रहे हैं हम इस बारे में, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो 31 दिसंबर 2025 तक हमें लोगों में 10,000 लोगों तक हमें 1-to-1 कनेक्ट होके उनकी हेल्थ को ठीक करना है। ये हमारा मोटिव है, हमारा मिशन है, जिसमें हम अभी कोचेस लगे हुए हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ जैसे हम एक पर्सन की हेल्प करते हैं, यहाँ में रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है। जैसे आज वुमेन्स डे है, आप सभी को, जो भी वुमेन्स हैं यहाँ पे, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। देखिए, जो वुमेन होती है वो घर पे बहुत काम करती है या सब कुछ करती है, बट रिकॉग्नाइजेशन उसे नहीं मिल पाता है, राइट। बट इस कम्युनिटी में आने के बाद जब भी मैंने एक पर्सन की हेल्प की, मुझे एक स्टेज मिला, वहां पे मुझे रिकॉग्नाइज किया गया, मेरा सम्मान किया गया वहां पे, और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है रियली में। दैट वाज ए गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन हमें मिलता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इसके बारे में थोड़ा सा गायत्री मैम बता चुकी हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताने वाली हूँ, उसके कॉजेस क्या है और किस तरीके से हम स्ट्रेस रिलीफ पा सकते हैं, राइट। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द लाइफ, but managing it effectively is crucial for maintaining good health and achieving fitness goals. Chronic stress can negatively impact both physical and mental well-being, slowing down progress in fitness and overall health. ये हमारी स्ट्रेस है कि हम हमारी जो स्ट्रेस है उसमें बढ़ते ही जाते हैं, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है और हमारी फिटनेस को वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अभी हम उसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे, तब आप उनको खुद से रिलेट कर पाएंगे कि जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ, सभी जो पर्सन यहाँ पे हैं हमारे सेशन में है, सभी को कोई ना कोई पॉइंट ऐसा टच करेगा कि हाँ ये मेरी लाइफ में हो रहा है, इसी वजह से मैं ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ या लेती हूँ, इसकी वजह से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट। तो इस तरीके के सब अभी अपनी लाइफ से इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। तो जो मेन कॉजेज हैं हमारे स्ट्रेस के वो क्या है? तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। देखिए, अगर अभी जो 90% प्रॉब्लम है वो अगर हमारे पास मनी है तो उनको हम खत्म कर सकते हैं। सभी जानते हैं इस चीज को, अगर हमारे पास पैसा है तो हम उस चीज को खत्म कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अगर हम स्ट्रोंग नहीं है तो उस चीज का बर्डन, उस चीज का जो इफेक्ट है सबसे ज्यादा हमारे माइंड पे पड़ता है और उसी चीज का स्ट्रेस लेकर हम और चीजों जो हमारे और भी गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाते। तो ये सबसे मेन कोज है कि हमारी लाइफ में हम स्ट्रेस लेते हैं। सभी को ये रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज को कि जिसकी लाइफ में रुपए की थोड़ी सी कमी है या जो फेस कर रहा है इस चीजों को, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे टू मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस पर्सन को बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं छोटी सी उम्र में या बड़ी उम्र में, उसके ऊपर एकदम से बर्डन आ जाता है चीजों का कि ये भी करना है वो भी करना है, इस तरीके से तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं पर्सन। थर्ड नंबर पर वर्क प्रेशर। अभी जैसे हम बात करें स्टूडेंट्स के या प्रोफेशनल से, वो जब भी अपनी जॉब पे जाते हैं, स्टूडेंट्स पे क्या होता है वर्कलोड पड़ जाता है, अपनी पढ़ाई का उन पे प्रेशर हो जाता है कि अगर हमने इतनी पढ़ाई नहीं की, अगर जो हमारा गोल है कि इतना % हमें अचीव करना है, या जो भी प्रोफेशनल पर्सन है कि हमें हमारे वर्क में मतलब आगे रहना है और वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाते, तो वो उस चीज को अपनी लाइफ में स्ट्रेस के लिए स्टार्ट कर देते हैं और वो स्ट्रेस लेते रहते हैं उस चीज का, जो बहुत इफेक्ट करती है हमारी मेंटल हेल्थ पे भी और हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी, राइट। फोर्थ नंबर पर है फेसिंग हैरेसमेंट एट वर्क और स्कूल। अभी ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम सामने आती है कि हैरेसमेंट किया जाता है उनको स्कूल के अंदर, उनको वर्क जो पैलेस है वहां पे प्रेशराइज किया जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो। तो ये ऐसे कॉजेज हैं कुछ। फिर फिफ्थ नंबर पर लूजिंग योर जॉब। अगर जो कोई भी मेल होता है उसका ये रहता है कि मैं जॉब करूं, मैं कमाऊं वहां से, अगर उसने अपनी जॉब को वहां से छोड़ दिया या कुछ कारण से उसको जॉब छोड़नी पड़ गई, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा स्ट्रेस यही आता है कि अब मैं मेरी फैमिली को किस तरीके से फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा,
या डेली बेसिस पे जो भी उनके खर्चे हैं या जो भी चीजें उनकी जरूरत की चीजें हैं, रिक्वायर्ड जो भी उनकी चीजें हैं, क्या मैं उन्हें ला पाऊंगा? तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। मैरिटल इश्यूज, अगर कोई भी जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में अगर सही तरीके से उनका जो मैरिड लाइफ नहीं चलती है, तो उसके अंदर भी वो कुछ स्ट्रेस लेकर, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, स्ट्रेस लेकर वो अपनी जो लाइफ है उसको एकदम मतलब मैं बोलूंगी बर्बाद करके रख देते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। अगर उनके बारे में डिस्कस किया गया, बैठ के बातें की गई, तो उस चीज को हम खत्म कर सकते हैं। बट ज्यादातर कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये चीजें सामने आती हैं, और जो भी जॉब पर्सन है वो वहां जाके स्ट्रेस लेते हैं, और फीमेल जो घर पे है या अपना वो जो वर्क कर रही है वहां पे जाके उन चीज को स्ट्रेस होता है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ये अनएम्प्लॉयमेंट सभी की। भाई सभी को कुछ ना कुछ काम करना है, अगर वो बेरोजगार है, अगर उसे नहीं मिल रहा है काम, तो कुछ तो रिलेटिव्स, कुछ फैमिली वाले, कुछ फ्रेंड्स, या वो उनको बोल बोल के इतना परेशान कर देते हैं कि आप इतना टाइम हो गया ये कर रहे हो, आपको अभी जॉब नहीं मिली, या ये सब एक्स्ट्रा वगैरह बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, जो उसको अगर वो पर्सन जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ भी एक्सेट्रा जो भी चीजें कर रहा है, अगर उस वो जॉब की तरफ जा रहा है, तो उसको मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करने वाले बहुत पर्सन होते हैं जो उसको स्ट्रेस में डाल देते हैं, राइट। हेल्थ इश्यूज, अभी जिसको भी हेल्थ इश्यूज है उसके हेल्थ इश्यूज के साथ साथ, जैसे मैंने बताया कि फिटनेस और मेंटली बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर, तो हेल्थ इश्यूज में भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हेल्थ इश्यूज जैसे ही हुए तो कुछ भी चीज की किसी भी पर्सन ने कुछ भी बोला, वो हम सीधे हमारे ऊपर लेकर जाते हैं कि ये पर्सन हमें क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो जिसको हेल्थ इश्यूज है वो पर्सन ही इस चीज को समझ पाता है, वही उसको रिलेट कर पाता है कि कोई भी मेरी कंडीशन को नहीं समझ पा रहा है कि मैं किस तरीके से सफर कर रही हूँ या सफर कर रहा हूँ, क्योंकि उसे लगता है कि जो मैं हूं मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूं, मेरे को समझना चाहिए। तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है। लैक ऑफ सपोर्ट, जब कभी उसको सपोर्ट नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, जो भी वो चाहता है पर्सन, उसको वो नहीं मिल पाती हैं चीजें, कि मैं जो करना चाह रहा हूँ या जो मैं चाहता हूँ उसमें मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, या मेरे जो भी वर्क पैलेस है वहां से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो पर्सन स्ट्रेस लेते हैं। इमोशनली ट्रॉमा, पुअर मेंटल हेल्थ, जैसे देखिए जो पर्सन स्ट्रेस में है वो ये सोच लीजिए कि मेंटल हेल्थ तो उसको स्टार्ट हो गई तब जब से उसने स्ट्रेस में रहना स्टार्ट किया है, या जो भी उसके आसपास की कम्युनिटी है उसने उसको इस तरीके से ब्लेम करना स्टार्ट किया है कि आप सभी चीजों का कारण हो, या कुछ भी एनीथिंग जो भी रीजन हो सकता है, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, राइट। क्योंकि देखिए मैं थी तो मेरा वजन कम था, ठीक है, मेरी ना कोई पर्सनैलिटी थी, इस तरीके से मेरे साथ चीजें होती थी, मैं घर पे रहती थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो मैं खुद से भी स्ट्रेस में जाती जा रही थी कि मैंने मेरी जो क्वालिफिकेशन की है या जो मैंने एजुकेशन ली है, मैं उसका क्या यूजेस कर रही हूँ, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैं इस चीजों को लेकर स्ट्रेस में जाती जा रही थी। पर थैंक्स टू माय कम्युनिटी, थैंक्स टू माय हैप्पी टू हेल्प क्लब, जहां से मुझे मेरा हेल्थ का गोल तो अचीव हुआ ही, इसके साथ साथ मैं एज ए कोच अभी लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ। तो ये मेन कॉजेज होते हैं हमारे स्ट्रेस के। अभी जो भी पर्सन यहाँ पे है उनको रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ स्टाइल से कि इनमें से कोई ना कोई एक या दो पॉइंट उनकी लाइफ में स्ट्रेस का कारण बनते हैं। वही ऐसे रीजन है कि अगर ये सब चीजें अगर उनकी लाइफ में चलती रहती हैं तो स्ट्रेस की तरफ जाते रहते हैं। तो ये तो बात हुई कि कारण क्या है। तो अगर हमारे पास कारण है तो उसका कोई सुझाव भी होना चाहिए, उपाय भी होना चाहिए। तो वी कैन डिस्कस अबाउट, मतलब जो भी हम उपाय हैं हमारे उनके बारे में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे स्ट्रेस होता है उसको हम खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बताना चाहूंगी आपको कि कोई भी चीज, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है, बट एक दिन जरूर हो जाती है। वो आपके ऊपर है, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होगी पर वो एक दिन जरूर होगी अगर आप कंसिस्टेंसी से उस चीज में लगे रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो भी कि किस तरीके से हम रिलीफ पा सकते हैं स्ट्रेस से, राइट। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्टॉप शैलो ब्रीदिंग। जो भी हम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं उसको स्टॉप कीजिए आप। अगर वो आपने कंट्रोल कर ली, और वो चीजें मेंटली हमारे पे करती हैं कि हमें मेंटली स्ट्रोंग बनना है कि किस तरीके से जो चीजें हम एक्टिविटी करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, वो खुद से कंट्रोल कर पाए
कि हमें ये चीजें नहीं करनी है। अब इसी के सेकंड में है, सेकंड, क्रिएट द हैबिट ऑफ डीप ब्रीदिंग। देखिए जो भी हमारे ब्रीदिंग की है, अगर हम लंबी सांस लेंगे, अभी जैसे कि ज्यादातर पर्सन कैसे सांस लेते हैं कि जब वो लेते हैं तो पेट को पिचका लेते हैं, बट देयर इज रॉन्ग वे। जब भी हम सांस लेते हैं तो अगर हम खींच रहे हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ जाना चाहिए, जब हम छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में कभी अगर होगा तो हम एक्सप्लेनेशन में बात करेंगे। तो आपको डीप ब्रीदिंग करने की मतलब वो हैबिट में लाना है ये आपको, क्योंकि ये चीजें आपको मेंटली भी स्ट्रोंग बनाने वाली है, क्योंकि हमारे ऊपर ही कंट्रोल होगा कि हाँ मैंने अपनी जो सांस है इतनी देर तक रोक के रखी है, राइट? यू कैन रिलेट दिस, ठीक है। तो जो हमारा अभी थर्ड पॉइंट है, टेक ए बैलेंस मील। एज ए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप एक बैलेंस्ड मील कंज्यूम करें डेली बेसिस पे, क्योंकि हमारे जो खाने पीने का तरीका है और जब खाना खाते हैं उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से हमारा पूरा जो रूटीन है, पूरी जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो खराब हो जाती है। और मैं तो एक मेन कोज मानती हूँ इस चीज को, स्ट्रेस का, कि अगर आप हेल्दी नहीं खाएंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, तो वो आपको स्ट्रेस को बहुत इफेक्ट करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो आप एक बैलेंस्ड को लीजिए। बैलेंस्ड मील में हमारा जो हमारे फ्रूट्स हैं, फाइबर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हमारा मोटा अनाज होता है, राइट, जो हमारे स्प्राउट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रॉपर मात्रा में लेने की जरूरत है हमें। अगर हम ये प्रॉपर मात्रा में लेंगे और हम इस चीज को समझ पाएंगे तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को काफी हद तक सुधार सकते हैं, और हम जो अभी हमारी बिजी लाइफ स्टाइल है उसमें अच्छे से अपना जो जीवन है उसको यापन कर सकते हैं, अमेजिंग हमारी जो लाइफ है उसको इंजॉय कर सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, स्ट्रेस लेते हम रहते हैं, हमें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमने पानी पिया नहीं या नहीं पिया है। आपको हमेशा डेली बेसिस पे 4 लीटर पानी कंज्यूम करना है, ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप डेली बेसिस पे 4 लीटर अगर पानी पिएंगे तो काफी सारी चीजें हैं जिनसे आप बच सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस है, स्ट्रेस अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये माइग्रेन की फॉर्म में चला जाता है। माइग्रेन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, प्रॉपर मात्रा में अगर पानी का कंज्यूम करते हैं, प्रॉपर मात्रा में अगर 4 लीटर आप डेली बेसिस पे पानी पीते हैं, तो आप जैसे माइग्रेन जैसी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। मैं जब भी बैठती हूँ, मेरा ये जो ग्लास है मैं इसको फुल करके बैठती हूँ, हमेशा मैं मेरे साथ मेरी टेबल पे हमेशा पानी रहता है, क्योंकि एज ए कोच मैं वही चीजें दूसरों को सजेस्ट करूंगी जो मैं खुद करती हूँ, राइट? ये सभी को पता है पानी हमेशा सभी को 4 लीटर पीना चाहिए, बट लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो आप 4 लीटर पानी को कंज्यूम करना स्टार्ट कीजिए। ये देखिए आप है ना, किसी भी चीज को 7 डेज स्टार्ट कीजिए, आपको 7 डेज में ही अपनी लाइफ में काफी चेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, प्रॉपर 4 लीटर पानी को कंज्यूम कीजिए। 5th नंबर पे है हमारा डेली एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए। अब थोड़ा सा नेचर के साथ टच होइए, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, रात में थोड़ा सा जल्दी सोइए, क्योंकि जो प्रकृति है ना, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है जो हमारे लिए है, बट हमारी जो बैड हैबिट्स हैं उनकी वजह से हम प्रकृति का पूरा अनुभव नहीं कर पाते हैं। जो चीजें प्रकृति ने हमें बनाई है, प्राकृतिक जो चीजें हैं, उनका हम अनुभव ही नहीं कर पाते। आप है ना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में उठ के देखिए, 4:30-5 बजे उठकर देखिए आप, और उस टाइम और आज जो नेचर है ना हमारा वो इतना ब्यूटीफुल होता है बहुत। उस टाइम जो एनर्जी है ना वो हर जगह पॉजिटिव एनर्जी रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में वही पर्सन उठते हैं जिनके लाइफ का कुछ गोल होता है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए, जो अपने वर्क के लिए रियली में एक्साइटेड रहते हैं, या रियली में जिन्होंने कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो आपको पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आप थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए इस चीज को। डेली मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर हमने एकाग्रचित होकर कोई चीजें करनी स्टार्ट कर दी तो हम उन चीजों को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे हमारी लाइफ में। अभी ज्यादातर चीजें यही तो होती है हमारी लाइफ में कि हम किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं। वो प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा मन कभी इधर भटकता है, कभी इधर भटकता है, हम ये भी कर ले वो भी कर ले, बट दिस इज रॉन्ग वे। एक जगह अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और ध्यान केंद्रित कैसे हो सकता है? जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे।
आप सुबह सुबह बैठिए 5 से 10 मिनट। देखिए वही मैं अभी दोबारा से कहना चाहूंगी, एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, काफी आप इसमें रिलीफ मिलेगा और जो स्ट्रेस है ना उसको आप काफी हद तक खत्म कर पाएंगे अपना। 7th पॉइंट है हमारा इनफ स्लीप। अभी जो भी प्रोफेशनल पर्सन है या जो भी हाउसवाइफ्स हैं, जो भी स्टूडेंट, एनीवन क्या करते हैं, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, सोते हैं या तो फिर 12-1-2 बजे तक सोएंगे और उठते हैं फिर 7-8 बजे तक सोएंगे। बट मैं आपको बता दूं, नींद का भी एक प्रॉपर टाइम है। जिस टाइम पे पूरा नेचर सो रहा है, हमारे जो भी बर्ड्स हैं या हमारे फ्लावर्स हैं, उनका एक टाइम होता है कि वो उस टाइम तक सो जाते हैं। तो अगर हमें हमारी लाइफस्टाइल को सही करना है तो हमें भी हमारा उस टाइम पे सोना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों को, एनर्जी को हमारे अंदर ग्रहण कर पाएंगे। और एक पूरी नींद जितनी हमें चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद हमारी बॉडी को चाहिए रिलैक्स होने के लिए। जो हम भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के लिए भी हमें 7 से 8 घंटे की इनफ नींद हमें चाहिए। तो आपको इनफ स्लीप अपनी डेली बेसिस पे लेनी है, तभी आप थोड़ा सा स्ट्रेस से फ्री हो पाएंगे, राइट। और जो हमारा 8th पॉइंट है, विजुलाइज एंड कम्युनिकेट योर विजन। आप विजुलाइज कीजिए इस चीज को और खुद का जो विजन है, थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इससे थोड़ा सा फ्री होकर खुद को थोड़ा सा टाइम दीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा रिलैक्स होइए, क्योंकि आप रिलैक्स होके कुछ भी सोचेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, आप परफेक्टली वो डिसीजन लेंगे। वरना जल्दबाजी में लिया हुआ कोई भी डिसीजन हमारा रॉन्ग ही होता है और हमें जाके वो आगे बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। तो विजुलाइज कीजिए और खुद के विजन खुद से कम्युनिकेट कीजिए आप, राइट। 9th नंबर पर है लाफिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जितना आप खुश रहेंगे, दूसरे पर्सन नहीं, खुद के लिए आप खुश रहिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, राइट। और जो हमारा 10th नंबर पर पॉइंट है, लिसन टू म्यूजिक। अच्छा जो म्यूजिक है उसको ग्रहण कीजिए, उनसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। मोटिवेशन जो भी सॉन्ग है या मोटिवेशन कोई भी हमारे स्पीकर है, उनको सुनिए आप, क्योंकि इससे में आप मोटिवेशन आएगा, जो आपका स्ट्रेस है वो थोड़ा कम होगा। और 11th नंबर और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कीजिए। जैसे अभी कल टुमारो है, तो आप अपने टाइम को मैनेज अपने पेपर पे कीजिए, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए कि किस तरीके से जो नेक्स्ट डे है उसको मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। वरना हम सोच के तो बहुत कुछ सोते हैं कि मुझे कल ये करना है, ये करना है, ये मतलब बहुत सारे काम होते हैं, बट हम उन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और कोई भी काम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था या जो प्रायोरिटी का काम था, वो हमारे से मिस हो जाता है। तो अपने टाइम को मैनेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीजें सारी अगर हम सीख गए हैं यहाँ से, तो हम हमारे स्ट्रेस को काफी हद तक, या मैं मानती हूँ कि स्ट्रेस को खत्म ही कर देंगे, राइट। तो स्टॉप स्ट्रेसिंग, स्टार्ट लिविंग। स्ट्रेस को खत्म कीजिए और जीना शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी में उड़ान भरिए, क्योंकि अभी तो परिंदे ने उड़ान भरी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, राइट। तो स्ट्रेस की अपनी लाइफ को छोड़िए और अपनी जिंदगी को जीना शुरू कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने इतनी अच्छे से मेरी स्टोरी को सुना और जो मैंने बताया, मैं आई थिंक आप उन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको काफी हद तक जो चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं, गलत हो रही हैं, स्ट्रेसफुल, आप अपनी लाइफ को एंजॉय स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी जो हो रही है उसको काफी हद तक खत्म कर पाएंगे, राइट। तो ये मेरी स्टोरी थी और अभी एज ए कोच मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अगर मैंने किसी की भी सेहत में सुधार किया तो। और थैंक्स टू एरिशा कि आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा। बट अभी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, नहीं तो हम एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बात करते। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। और आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सो मच। बैक टू अवर सुपर डुपर को होस्ट शिवानी गुप्ता मैम। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Manjuji, for such a nice presentation and nice explanation. I really liked your line कि मतलब एक दिन में नहीं होगा, but एक दिन जरूर होगा. And I started this we started this talk by saying that Happy Women's Day to, of course, all the women present over here and around, and also to the men who kind of support them, celebrate them. And I completely see that your husband is
kind of very exemplifies that to the core. So I wish everybody does that as a community so that we all can grow, not just women, not just man, but like everybody together. So it's very important, I believe. Now the floor is open. Anybody who's interested to have a discussion, share their opinions, or has a question can ask Gayatri ji or Manju ji. Yeah, thank you so much to our eminent speaker and Gayatri and Manju. Really, it was very wonderful session. And I'm Dr. Lalchan Vishkarma. And I contact with the Devinder. If possible, then please talk to your wife. And we would like to invite such a wonderful session. And even we want to celebrate the Women's Day. And I'm really happy. And thank you so much. You've given the precious time for such a wonderful discussion. Definitely, if we will follow the such kind of things in our life, then we can improve ourselves and our daily routine life, whatever we are doing in the like the scientific career and professional and everything, and we are doing the study. So that is very important. So we can grow also. So I would like to thanks to all the participants and who join and listen to them, and really because if we want to do anything in our life, then definitely if we will manage such kind of things, then definitely we will grow. So and consistency is very important. So once again I would like to thanks. If anybody have question, please ask, and we can discuss also on every month and most of the Saturday and 7 p.m. we always conduct such kind of talk in different topic on ASA platform, because we are also working for the welfare of research scholar who are working as who are working the PhD in research and some other postdoctor in prestigious institute in India, because most of the time we are also facing several kind of issues and in a very minor level, but we most of the time we ignore those things. So we should not ignore, and we should connect with such kind of things and follow those kind of things who Manju and Gayatri told and refresh to us. So that is very important. So thank you so much. Please, who have any question, please ask. Otherwise, we will close our session. I can see Bipin ji and Devender ji has raised their hands. I think they want to share something. Yeah, yes, Devender. Can you audible? Okay, just one. Hello. Yes, Devender. Yes, Good Devender. evening, everyone. सबसे Yeah, पहले yeah. सभी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल वुमेन को हैप्पी वुमेन्स डे। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था। तो गायत्री मैम और मंजू मैम को मैं बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए। दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से अमेजिंगली काफी सारे पॉइंट और टॉपिक डिस्कस किए और बहुत सारी चीजें सीखने और देखने को मिली। बहुत सारी चीजें मैं कुछ चीजें मैं भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था मेडिकल लाइन से बिलोंग करने के बावजूद भी। बहुत सारी चीजें सीखी और देखी और इन्हें लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि शिवानी मैम को एक लाइन पसंद आई कि एक दिन में कुछ नहीं होता है बट एक दिन जरूर होता है। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई और इन्हें को मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। नहीं, मुझे भी पसंद आई। कोई कॉपीराइट इश्यूज ना हो, अगर है तो वो डिक्लेयर कर दें मंजू जी। नहीं, मुझे भी पसंद आया काफी। इट वाज वेरी गुड लाइन। मींस गुड नॉट वाज है। बेसिकली हम क्या एक मिस्टेक क्या करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम क्या कि ब्लेम करते हैं दूसरों को। हम अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश खुद नहीं करते हैं कभी भी। तो एक स्ट्रेस का एक रीजन ये भी मैं मानता हूँ।
जब तक हमें किसी दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बदल लीजिए, दुनिया अपने आप से बदल जाएगी। That is the true. Yeah, very true. So okay, I think I think everybody have enjoyed such a wonderful session. And once again, thank you so much to everyone and who have participated, and our eminent speaker Manju and Gayatri. Thank you so much. And thank you, Shivani, Dr. Shivani, and really, and before 2 days, I just contact with the Shivani, ki please come and join the such kind of session, and please moderate such a talk. So thank you, Dr. Shivani, and for accepting the such kind of responsibility and manage all these things. Thank you so much, and all our team. And some of the time depend on the topic, so people are taking the interest on their topic who want to join or not. So it doesn't matter, because it's if we are connecting to each other, we also feel the energize to each other. So thank you so much, and next event we will update to everyone, and thank you so much. Thank you so much, Dr. Lal, for this opportunity. And somehow, not a feminist thought, but somehow every year I host some of the other event at my previous college and now as well, especially on Women's Day. So of course I had to say yes. And thank you, Manjuji and Gayatri ji, for this amazing presentation. And thank you everyone who took out their time and listened to what our speakers has to say. Yeah, thank you so much. Thank you so much, everyone.